دہلی میں امام علی سے روزہ انٹرنیشنل کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ اس کانفرنس کا مقصد انسانیت کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ یہ کانفرنس ہے جو دہلی میں ہو رہی ہے، لودھی روڈ پر انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر، بہت مشہور سینٹر ہے، وہیں ہوگی۔ اور کانفرنس کا مقصد بہت واضح ہے، جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس دور میں انسانیت بہت کربناک دور سے گزر رہی ہے، انسانی قدریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ضرورت ہے کہ انسانوں کے سامنے انسانی قدروں، اخلاقی قدروں اور روحانی قدروں کی بڑی مثالیں بار بار پیش کی جائیں، اور یقیناً پوری انسانیت کے لیے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کا کردار بہت عظیم کردار ہے، ہر اعتبار سے، اخلاقی، روحانی، علمی۔ ایک میں جو جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ کردار ہے جو تاریخ بشری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنگلورو میں SSLC اور PUC میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو دینیات صفا فاؤنڈیشن نے تہنیت پیش کی۔ اس فاؤنڈیشن کے تحت گزشتہ چند سالوں سے ملت میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیش تفصیلات۔ بنگلورو میں تعلیمی ترقی کے لیے دینیات صفا فاؤنڈیشن کی کوشش رنگ لا رہی ہے۔ اس تنظیم کے تحت چند ڈاکٹرز، انجینئرز، ایڈوکیٹس اور تاجرین نے مل کر پسماندہ اور دیہی علاقوں کے طلباء کی رہنمائی اور تربیت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ لہٰذا اس کوشش کے سبب سالانہ امتحانات میں طلباء کی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے۔ سال 2018-19 کے SSLC اور PUC امتحانات میں 500 سے زائد طلباء نے فرسٹ کلاس اور 100 سے زائد طلباء نے ڈسٹنکشن کا درجہ حاصل کیا ہے۔ نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے ان طلباء کو اعزاز اور انعامات سے نوازا گیا۔ ہمارے قوم کو آگے بڑھانے کے لیے علم جو ہے وہ بہت ہی معنی رکھتی ہے، کیونکہ آج ہماری قوم کیا ہے، SC ST سے بھی پیچھے ہماری قوم ہے، کیوں؟ ہمارے اندر علم نہیں ہے۔ تو وہ محنت کرتے ہوئے گاؤں جا کے، شہر جا کے، یہ بہت ٹف جاب ہے، بہت ٹائم مطلب فرسٹریشن ہوتا ہے، بہت ٹائم ہمیں کیوں چاہیے سب بولتا ہے، مگر پھر بھی ہمیں اپنے آپ کو تسلی کر کے ایک ٹیم ورک کر کے، ایک ٹیم اچھی بنا کے ہیں، اور ٹیم ورک کر کے ایسے پروگرامز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سالانہ ایک بار جلسہ ہوتا ہے، وہ جلسے میں فیلسٹیکیٹ کر رہے ہیں ہمیں۔ اس میں ہمیں جو ٹاپرز بچے ہیں، لگ بھگ آج 500 سے زیادہ بچے فرسٹ کلاس پاس ہو کے ہیں، خالی ہمارے یہ زون کے، بنگلور ایسٹ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 112 بچے ڈسٹنکشن میں پاس ہو گئی۔ تقریب میں مقررین نے کہا کہ تعلیمی ترقی کے لیے ملی تنظیمیں اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائیں۔ یہ بچوں کو ہمیں صحیح 5 سال 6 سال تک کنسسٹنسی کے ساتھ ان کی رہنمائی اگر مل گئے تو قوم کے اندر بہت اچھے بچے نکل سکتے ہیں، ڈاکٹرز کی حیثیت سے، انجینئرز کی حیثیت سے، زندگی کے ہر شعبے میں اچھے لیڈرز بن سکتے ہیں۔ صرف میریٹوریس اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن جو فیلیور ہو گئے ان کے لیے بھی ہم کچھ کوشش کرنا چاہیے۔ بہت امپارٹنٹ بات ہے وہ بچے اپنے آپ کو یہ افسوس نہ محسوس کریں۔ بہت سارے بچے ایسے ہو گئے جو فیلیور ہو گئے، یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ختم، کہ اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے طریقہ۔ ہر بندے کا اپنا ہی ایک کیلیبر ہوتا ہے، اس کے کیلیبر کے مطابق ہی وہ اپنا زندگی بناتا ہے۔ بنگلورو کی دینیات صفا فاؤنڈیشن پچھلے 10 سالوں سے طلباء کو دینی تعلیم سے آراستہ کر رہی ہے، لیکن گزشتہ 3 سالوں سے یہ تنظیم دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم کی جانب بھی توجہ دے رہی ہے۔ مختلف اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کو امتحانات کی تیاری، کریئر گائیڈنس، اسکل ڈیولپمنٹ، اس طرح کے کئی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ نیوز 18 اردو کے لیے بنگلورو سے روف احمد ہنور کی رپورٹ۔ سول سروسز امتحانات کے لیے بھوپال میں قائم کی گئی مولانا آزاد سینٹرل لائبریری انتظامیہ سے طلباء پریشان ہیں۔ اقلیتی طلباء امتحانات کی تیاری کے لیے جہاں لائبریری کے اوقات میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہیں لائبریری انتظامیہ سٹاف کی کمی کا بہانہ بنا رہا ہے۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ قدیم بھوپال میں مولانا آزاد سینٹرل لائبریری کا قیام دگ وجے سنگھ حکومت میں گیان یونٹ کے طور پر کیا گیا تھا۔ گیان یونٹ کا مقصد سینٹرل لائبریری میں طلباء کو تمام سہولیات مہیا کرانا تھا، جس سے وہ مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاریاں بہتر ڈھنگ سے کر سکیں۔ لائبریری تو قائم ہے اور لائبریری میں بلا لحاظ مذہب و ملت طلباء بڑی تعداد میں اسٹڈی کے لیے بھی آتے ہیں۔
लेकिन लाइब्रेरी के औकात में इजाफे के तलबा के मुतालबे को इंतजामिया कबूल नहीं कर रहा है। सुबह 7 बजे से कोई सी भी हमें जगह मिल जाए जिसमें हम पढ़ के पढ़ाई कर सकें। अभी क्या कठिनाई हो रही है? अभी ये कठिनाई हो रही है कि हम कभी कभी सुबह जल्दी आ जाते हैं, रात में हम जल्दी बंद हो रहा है, टाइम पर बंद हो रहा है मतलब। तो हम ये चाह रहे हैं कि सुबह हम जल्दी आ जाते तो वो हमारा टाइम सुबह जल्दी कवर अप हो जाए। ये यहाँ बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, बस ये कहने का मतलब ये है कि सुबह 7 बजे से लाइब्रेरी खुल जाए तो जो ड्यूटी वाले हैं वो पूरे दिन नहीं पढ़ सकते, तो वो पहले आके पढ़ लें। टाइमिंग हमारा थोड़ा अभी लेट खुल रहा है, थोड़ा जल्दी खुल जाए तो और भी अच्छा है। वैसे भी अब सर्दी का मौसम तो चल गया है तो दिक्कत भी नहीं आएगी सुबह खोलने में भी। मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी भोपाल के अजायब घर में तामीर की गई है। तलबा चाहते हैं कि लाइब्रेरी को सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक खोला जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर सकें। जब इस ताल्लुक से न्यूज़ 18 ने लाइब्रेरी इंचार्ज से बात की तो उन्होंने स्टाफ की कमी और बजट की कमी का रोना रोया। इंचार्ज क्या कहते हैं आप भी सुनिए। अगर वो ये कहें कि सुबह 4 बजे हम उठ करके पढ़ते, मकान मालिक लाइट नहीं जलाने देते, हम यहाँ आ जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है कि उनके अनुसार खोले। और दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भी अभी लाइब्रेरी जो डे नाइट खुलती है, ये कॉलेजेस की हो सकती है, उन संस्थाओं की हो सकती है जिनकी प्राइवेट लाइब्रेरीज हैं। गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में अभी इस तरह का यदि आता है, आदेश आता है तो हम खोलेंगे। नहीं उसके अलावा फिर हमें स्टाफ की जरूरत पड़ेगी अतिरिक्त। हमें जो है दूसरी बात, हम जैसे बिजली का बिल है, ये सब बिल है, ये इन सारी समस्याओं को तो अभी हमें ही देखना होता है। नए भोपाल में मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी के लिए हुकूमत की जानिब से कई स्टडी सेंटर कायम किए गए हैं, लेकिन कदीम भोपाल में मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी वाहिद सेंटर है जहां बड़ी तादाद में अक़लियती तलबा मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी के लिए आते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। मुल्क की आज़ादी का जब भी जिक्र आता है तब बड़े लीडरान को याद किया जाता है, लेकिन मुल्क को आज़ादी दिलाने में ऐसे अफराद का भी अहम रोल था जिनकी अजीम जद्दोजहद को पसे पुश्त डाल दिया गया। उन्हीं में से एक है मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाली मुजाहिद आज़ादी यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो तहरीक नारा भी सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। देखिए ये रिपोर्ट। मुल्क की आजादी में अहम किरदार निभाने वाले भारत छोड़ो तहरीक को माह अगस्त में 77 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी की क़यादत में भारत छोड़ो तहरीक शुरू हुई थी। ताहम बहुत कम लोग इस हकीकत से वाकिफ हैं कि भारत छोड़ो तहरीक का नारा सोशलिस्ट सियासतदान और मुजाहिद आज़ादी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। उस वक्त यूसुफ मेहर अली मुंबई के मेयर भी थे। मेहर अली पहले सोशलिस्ट थे जिन्हें मुंबई के मेयर के तौर पर मुंतखब किया गया। मेहर अली जद्दोजहद आज़ादी के सिलसिले में 8 मरतबा जेल भी गए। यूसुफ मेहर अली ने 1928 में साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ का नारा भी दिया था। ये जो क्विट इंडिया का जो नारा है, जो 9 अगस्त को बम्बई के ग्वालियर टैंक से जो है जारी किया गया था, ये क्विट इंडिया का नारा जो है ये खुद यूसुफ मेहर अली साहब का दिया हुआ था। और इससे पहले साइमन कमीशन जब हिंदुस्तान आया तो साइमन गो बैक की एक तहरीक चलाई गई थी कि उसको जो है हिंदुस्तान में उसको कदम जमाने ना दिए जाएं। तो ये साइमन गो बैक का नारा भी जो है ये यूसुफ मेहर अली साहब का दिया हुआ है। और यूसुफ मेहर अली ने हयात तो बहुत कम पाई, 1903 में पैदा हुए और 1950 में इंतकाल भी फरमा गए, लेकिन इस मुख्तसर से अरसे में भी जो है उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। यूसुफ मेहर अली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल में, और फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्ना को छोड़कर बाकी मुसलमानों के नाम हम नहीं जानते, हिंदुस्तानी नहीं जानते, क्योंकि उनका इतिहास बताया भी नहीं जाता। उनमें से यूसुफ मेहर अली एक है। बहुत बड़ा रोल रहा। 1942 में बॉम्बे के मेयर रहे ब्रिटिश ज़माने में, लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ थे। उन्होंने अपना पद का त्याग करके क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया। यूसुफ मेहर अली की पैदाइश 3 सितंबर 1903 में बॉम्बे में हुई थी। एक अमीर घराने में पैदा होने के बावजूद यूसुफ मेहर अली के दिल में नौजवानी से ही सोशलिस्ट मूवमेंट के मुतालिक खैरात परवान चढ़ रहे थे।
जद्दोजहद आज़ादी में यूसुफ मेहर अली की शिद्दत पसंदी को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने मेहर अली की कानूनी प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद कर दी थी। मुहक्किकीन का कहना है कि यूसुफ मेहर अली के कारनामों को आम करने की जरूरत है। मुसलमानों में एक बहुत बड़ा नाम है जिस पर उर्दू में ख़ास तौर से लिखने की ज़रूरत है ताकि उर्दू वाले भी पढ़ें, और फिर यही नहीं महदूद न रखा जाए, इसलिए कि उनकी शख्सियत इतनी जानदार, इतनी फ़ाल शख्सियत थी कि अंग्रेज़ी में भी और दूसरी ज़बानों में उनके बारे में लिखना चाहिए कि हमारी तहरीक आज़ादी में का एक ताबनाक सितारा है मेहर अली, उन्हें भी फरामोश नहीं किया जा सकता। 1932 में यूसुफ मेहर अली को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जाम में 2 साल के लिए नासिक जेल में रखा गया। यूसुफ मेहर अली ने लीडर ऑफ इंडिया नामी किताब भी लिखी, जिसका हिंदी, उर्दू और गुजराती में तर्जुमा किया जा चुका है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मुयुद्दीन की रिपोर्ट। ये एक आम ख्याल है कि हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी में जनूबी हिंद ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन ये एक हकीकत है कि शिमाल में पहली जंग आज़ादी के आगाज से पहले ही जनूबी हिंद में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के वाक़यात रुनुमा होने शुरू हो गए थे। उसी दौर में हैदराबाद में निज़ाम हैदराबाद के सिपाही तुर्रेबाज खान ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए हैदराबाद में कायम ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले की कोशिश की थी, जिन्हें गिरफ्तार करने के बाद शहीद कर दिया गया। हैदराबाद के इलाके कोठी में कायम उस्मानिया यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेज की तारीखी इमारत दरअसल साबिका रियासत हैदराबाद में तकर्रुर बरतानवी हुकूमत के नुमाइंदे की रिहाइशगाह थी। विमेंस कॉलेज के दूसरे गेट से थोड़ी दूर गौर से देखने पर दरख्तों की आड़ में एक यादगार दिखाई देती है। इस यादगार पर इंग्लिश, तेलुगु और उर्दू में लिखा है, यादगार मुजाहिदीन आज़ादी सन 1857। न यहाँ कोई कुतबा है और न किसी मुजाहिद आज़ादी का नाम तहरीर है। दरअसल ये वो इलाका है जहाँ 17 जुलाई 1857 को एक रोहिला सरदार तुर्रेबाज खान ने अपने साथियों के साथ अंग्रेज फौज के साथ लड़ाई की थी, जिसके बाद अंग्रेज फौज ने इन्हें उनके साथी मौलवी अलाउद्दीन के साथ गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद तुर्रेबाज खान को मौलाना अलाउद्दीन के साथ काला पानी भेजने की कोशिश के दौरान तुर्रेबाज खान अंग्रेज फौज की गिरफ्त से बच निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन अंग्रेजों ने इनका पीछा करते हुए इन्हें पकड़ लिया और 24 जनवरी सन 1859 को पहले इन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया और फिर उनकी लाश को हैदराबाद में ही एक चौराहे पर लटका दिया। और ये हवलदार थे, सब तुर्रेबाज खान एक हवलदार थे, और जितना वो सिपाही थे उसका नीचे थे, वो लोगों को ऐसा इन्फ्लुएंस किया जब तक ये अपना ब्रिटिश इंडिया से नहीं आए तो इंडिपेंडेंस नहीं आएगी। और ये लोगों की वजह से और हिंदुस्तान बैकवर्ड भी हुआ, और हिंदुस्तान का जो रिसोर्सेस पूरा है और कॉलोनियलिज्म से पूरा बाहर जा रहे हैं, उस वास्ते फिर पुराना ओल्ड इंडिया को गोल्डन चिड़िया लगाने के लिए अब फ्रीडम फाइट के लिए करना बोल के अपराइजिंग शुरू हुआ। ये अपराइजिंग इसका बातें पूरा माने और रिवोल्ट किए थे। जैसा ये रिवोल्ट किए तो ब्रिटिश रेगुलर आर्मी आके तुर्रेबाज खान को अरेस्ट किए और बाकी लोगों को अरेस्ट किए। जिस तरह हैदराबाद के तिजारती मरकज सुल्तान बाजार कोठी पर कायम जाबाज सिपाही तुर्रेबाज खान और उनके साथियों की याद में कायम ये यादगार अवाम की नजरों से छुपी हुई है, उसी तरह तुर्रेबाज खान को तकरीबन भुला दिया गया है। इसके अलावा कोठी विमेंस कॉलेज से लेकर उस्मानिया मेडिकल कॉलेज जाने वाली सड़क को तुर्रेबाज खान के नाम से मौसूम किया गया है, लेकिन इस बात से यहाँ के रहने वाले अवाम खुद लाइल्म हैं। ये मेमोरियल लगा केवल तो वहाँ से अटैक हुआ सर, जो अटैक जो हुआ मेमोरियल तो अभी तो कुछ नहीं, सब देखो ये गवर्नमेंट ने करना बड़ा एक स्टैचू लगाना और उसको मेमोरियल लगाना है तुर्रेबाज खान का और मौलवी अलाउद्दीन का, दोनों का चाहिए। केवल तो तुर्रेबाज खान से वहाँ से आके इधर लड़ लिए, बट जो हैदराबाद लोगों को पूरा इकट्ठा करके अटैक करने के लिए मौलवी अलाउद्दीन की है, तो मौलवी अलाउद्दीन ऑल्सो प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल तुर्रेबाज खान को। एक्चुअली मौलवी अलाउद्दीन तुर्रेबाज खान को रिलीज करने के लिए गए, ये इसका रोल बहुत बड़ा है।
तुर्रबाज खान जो रेबल किया है वो बुल्दाना में नहीं किया है, हैदराबाद में नहीं किया है, हैदराबाद में प्रिजनर बन के आया, ये बात है। दरअसल दोनों का स्टैचू रहना हमारा ये है। हैदराबाद के तारीखदां और फनकार इस कोशिश में हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले तुर्रेबाज खान के कारनामों को आवाम न भूल पाएं। इसलिए कादिर अली बेग थिएटर फाउंडेशन के बानी मोहम्मद अली बेग तुर्रेबाज खान की जिंदगी पर तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू में ड्रामा पेश करते आ रहे हैं। पहली जंग आजादी के दौर में हैदराबाद में शम्मे बगावत को रोशन करने वाले तुर्रेबाज खान पर तुर्रेबाज खान द हीरो ऑफ हैदराबाद के नाम से नामवर तारीखदां देवी रेड्डी सुब्रमण्यम रेड्डी ने एक किताब भी लिखी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। पहली जंग आज़ादी से लेकर हिंदुस्तान की आज़ादी तक उलमाए दीन की कुर्बानियों की एक लंबी फहरिस्त है। इनमें एक नाम शेख उल हिंद मौलाना महमूद उल हसन का भी है, जिनका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद से था। अंग्रेजों से मुल्क की आज़ादी की इस लड़ाई में मौलाना महमूद उल हसन देवबंदी ने रेशमी रुमाल तहरीक के जरिए अहम किरदार अदा किया था। देखिए ये रिपोर्ट। आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी इदारे दारुल उलूम देवबंद ने भी मुल्क की आज़ादी में बेहद अहम रोल अदा किया है। दारुल उलूम के तालिब इल्म मौलाना महमूद उल हसन ने रेशमी रुमाल तहरीक चलाकर आज़ादी के मतवालों में एक नया जोश और वलवला पैदा किया। हिंदुस्तान और बरे सगीर से अंग्रेजी हुकूमत का तसल्लुत खत्म करने के मकसद से इस तहरीक की शुरुआत की गई और इस तहरीक की अहमियत का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि इस तहरीक में मौलाना आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान, नवाब वक़ारुल मुल्क, मौलाना अब्दुल हक, मौलाना मंसूर अंसारी जैसी अजीम शख्सियात शामिल थीं। इस तहरीक में मुजाहिदीन फिरंगियों के खिलाफ बन रहे मंसूबों और पैगामों को रेशमी रुमाल पर लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते थे। सन 1905 में दारुल उलूम की बागडोर संभालने वाले महमूद उल हसन उन मुजाहिदीन में से एक थे जिन्हें उनके कलम, इल्म, इखलाक और तर्ज अमल जैसी खुसूसियात की वजह से शेख उल हिंद के लक़ब से नवाजा गया। रेशमी रुमाल तहरीक का एक ख़ास मकाम है हमारी जंग आज़ादी में, और ख़ासकर जब गांधी जी का ज़माना शुरू होता है, तहरीक उनकी जब शुरू होती है, वो और फिर दोनों अली बरादरान मिलकर जो काम शुरू करते हैं तो उससे एक माहौल बन रहा। तो उसी में रेशमी रुमाल तहरीक भी जो उलमाए देवबंद हैं, रेशमी रुमाल तहरीक ने मतलब इसको और बिल्कुल नए फ्लेवर के साथ रुमाल पर मतलब अपना मैसेज, अपना पैगाम लिखकर आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की। 1916 में रेशमी रुमाल तहरीक उरूज पर थी और इस तहरीक से खौफ खाकर अंग्रेजों ने शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन को उनके साथियों मौलाना अजीज गुल, हकीम नुसरत हुसैन और मौलाना वहीद अहमद के साथ गिरफ्तार करके माल्टा जेल में कैद कर दिया। अंग्रेजों का जुल्म बर्दाश्त करते हुए 4 साल माल्टा जेल में गुजारने और फिर कैद से आजाद होकर वापस आने के बाद शेख उल हिंद और उनके साथियों ने महात्मा गांधी से खास मुलाकात की और तहरीके जंग आज़ादी को नए जोश और वलवले के साथ नई हयात बख्शी। रेशमी रुमाल तहरीक और जंग आज़ादी में महमूद उल हसन देवबंदी की खिदमात का एतराफ़ करते हुए सदर जमहूरिया ने 2013 में दिल्ली के विज्ञान भवन में रेशमी रुमाल तहरीक के नाम पर बाकायदा एक डाक टिकट जारी किया। ये तहरीक जो है यानी अंग्रेज़ों के इल्म में आ गई और हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब को मक्के मुकर्रमा से गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको माल्टा में कैद किया गया। मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत शेख उल हिंद के शागिर्द थे, वो भी इस कैद में उनके साथ रहे। यहाँ से जब हज़रत हाजी मौलाना महमूद हसन साहब जो है रिहा होकर आए, फिर गांधी भी इसमें शरीक हुए और दूसरे बिरादरान वतन भी शरीक हुए, यहाँ तक कि 1947 में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की जद्दोजहद से, उलमा की जद्दोजहद से और बिरादरान वतन के साथ लगने की वजह से जो है हमने कामयाबी हासिल की। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में रेशमी रुमाल तहरीक जंग आज़ादी की तारीख का एक ऐसा कारनामा है जिसे हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख में कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और न ही उलमाए देवबंद की कुर्बानियों को भुलाया ही जा सकता है।
मेरठ से तंजीर अंसार की खास रिपोर्ट।